students, welcome to Pradis Institute of Education. I, your Ayushi Pandey madam, will be taking science and chemistry for you. Let's see, last class में हमने क्या देखा था? In last class we saw up till here guys, right? Atomic mass देखा था, average atomic mass देखा था. Yes, and we solved some related problems like conversion from AMU to G and G to AMU. Yes students, and today what we'll see is the molecular mass. Okay, along with the molecular mass we'll see the formula mass also. Yes, and we'll solve some associated problems, and if time is left we'll continue with the mole concept. I'll just give you a brief idea of what is mole concept, and then its details we'll study in our next class. Okay, so I think we should begin with the session now. Okay students, see here, what did we see yesterday? कि जो periodic table में atomic mass mentioned होता है, what is that? It is not the exact mass for any element, isn't it students? It is the average atomic mass. एवरेज एटॉमिक मास किसके केस में कैलकुलेट करते हैं? आइसोटोप्स के केस में कैलकुलेट करते हैं. यस स्टूडेंट्स, सो हियर वी हैव द एवरेज एटॉमिक मास. सी, कल ही बताया था फॉर कार्बन वी हैव 12.011. जितने भी उसके 3 आइसोटोप्स हैं उनकी अक्रेंस को देखते हुए वी कैलकुलेट, कल हमने सीखा था एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं. सिमिलरली फॉर क्लोरीन एज वेल. ओके, चलो, so now let us move on to the concept of molecular mass. Okay, so students, what are molecules? See here, what is written? Molecular mass. तो molecular mass हम किसके लिए calculate करेंगे? Molecules के लिए. Okay, see, कल हम क्या कर रहे थे? एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन किसके लिए? एटम्स के लिए. एंड टुडे व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास फॉर molecules. Isn't it students? What are molecules now? All of you must be aware of what are molecules. See, whenever atoms combine together in a fixed ratio, what do we get? We get molecules, isn't it? Yes students? So we'll be calculating molecular mass. See, molecules are smallest particle of matter that are capable of independent existence, isn't it? Can't we see that a molecule of water is existing, right? It is stable. Independent existence का मतलब क्या होता है कि वो अपने फॉर्म में स्टेबल है. Okay, stability is the concern. Chemistry में या in all of this nature, what do organisms or what do species do? They tend to acquire stability. सबको stability चाहिए. Yes, for their existence. Similarly, यहाँ बोला गया है कि in chemistry molecules जो हैं, they are the smallest species of that are capable of independent existence. Okay? Yes? चलो, like atoms, molecules are so small that their mass can't be determined by actually weighing. क्या ऐसा possible है कि हमने वाटर जो कंपाउंड है हमारा उसमें से एक मॉलिक्यूल निकाल लिया एंड उसको वेइंग मशीन पे रख दिया एंड वी आर वेइंग इट? क्या ऐसा पॉसिबल है मॉलिक्यूल्स के केस में? चलो, एटम्स तो हम बोल रहे हैं कि बहुत ही छोटे हो गए, इजंट इट? लेकिन मॉलिक्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स. जब हमने एटॉमिक मास निकाल लिया तो ऐसे दिमाग में आता है ना कि चलो एटॉमिक मास नहीं कैलकुलेट कर पा रहे थे वे करके, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें है क्या? इनमें एटम्स हैं. Yes students, so since many atoms are combining, or we can say 2 to 3 to 4 atoms are combining to form a molecule, तो हम उसको weigh कर सकते हैं. कुछ appreciable amount दिखता होगा तो हम उसको weigh कर सकते हैं. ऐसा है क्या students? नहीं, ऐसा नहीं है. Yes, so molecules are also very small that their mass can't be determined by actually weighing them. Okay? हम एक मॉलिक्यूल नहीं ले सकते वाटर का, या हम एक मॉलिक्यूल नहीं ले सकते किसी भी कंपाउंड का और उसको वेइंग मशीन पर रख कर उसको वे नहीं कर सकते, बिकॉज अगेन दे आर वेरी 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 स्मॉल.
Clear? I hope it is clear to all of you. Now let us see further. Therefore, like atomic masses, molecular masses are expressed relative to the stable C12 isotope having mass 12. जैसे कल relative C12 isotope को relative standard माना था in case of atomic masses, वैसे ही आज भी हम molecular mass के केस में relative standard मानेंगे कार्बन 12 के सबसे stable isotope को. Clear? Clear to all of you? चलो. Molecular mass, what is molecular mass? It is the sum of atomic masses of the elements, isn't it, present in a molecule. It is obtained by multiplying the atomic mass of each element by the number of its atoms and adding them together. कुछ नहीं करना है. कल हम हर स्पीशीज का क्या कैलकुलेट कर रहे थे? एटॉमिक मास. कल हमने देखा था कि एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट? व्हाट विल वी सी टुडे इज जो भी हमने एटॉमिक मासेस कैलकुलेट करे हैं स्पेसिफिक एलिमेंट्स के लिए या एटम्स के लिए, उनको बस जोड़ना है. ओके उनको सिर्फ क्या करना है? हमें जोड़ना है टू गेट द मॉलिक्यूलर मास. क्लियर गाइस? सी हियर नाउ. अच्छा देखो यहाँ पर मीथेन का एग्जाम्पल दिया है. लेट्स सी, लेट्स चेक आउट. देखते हैं मीथेन का. CH4 is methane. Yes? CH4 is what students? Methane. पढ़ा होगा सबने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या 10th क्लास में बेसिक फॉर्मूला है. CH4 is a molecule of methane. Okay? इसमें हम देखेंगे सबसे पहली स्टेप जो होगी वो देखेंगे कि इसमें एटम्स कौन से इन्वॉल्व हैं. Atoms involved. Okay? So what are the atoms that are involved here beta? What are the atoms? C and H. Yes? Carbon and hydrogen are the atoms that are involved. सबसे पहले हमें यही देखना है कि क्या atoms involved हैं. Okay. So हमने पता लगाया कि C and H involved हैं. सामने ही दिख रहा है. Now what we have to do is we have to see the number of times that atom is there present. है ना? देखना है कि वो atom कितनी बार है. Carbon, can we see anything? Carbon is just once. Hydrogen is 4 times. Yes? Hydrogen कितनी बार है? 4 बार है. Carbon 1 बार है ना? अब क्या करेंगे? इनके सिंस हमें एटॉमिक मासेस पता है, इनका पहले हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे. तो सिंस वी नो दैट एटॉमिक मासेस ऑलरेडी, लाइक कार्बन का कितना होता है? टेल मी. 12 पॉइंट समथिंग, 12.011 समथिंग लाइक दैट. तो हम 12 ले लेते हैं, है ना? 12 ले लिया. एंड फॉर हाइड्रोजन हाउ मच इज इट? 1.008. कल देखा था. इन यूनिट्स बात हो रही है बेटा, इन यूनिट्स बात हो रही है. ओके now what we'll do, या फिर इसको something like around 1 ले लो अभी समझने के लिए, है ना? 1 यूनिट ले लो. yes students? तो अब क्या होगा? 12 here, 12 into 1 will give us 12 and 4 into 1 will give us 4. what do we get students? what do we get? 12 and 4. इनको सिंपली क्या कर देना है? नाउ सिंस ये हमें एटॉमिक मासेस मिल गए हैं 12 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स, इनको सिंपली क्या कर देना है? ऐड कर देना है. व्हाट आर वी गेटिंग? 16 यूनिट्स. यस, व्हाट आर वी गेटिंग? 16 यूनिट्स. दिस इज आवर molecular mass for the molecule of CH4. Is it clear to all of you? Similarly यहाँ पर एक example given है और it is of H2SO4, है ना? तो इसमें हाइड्रोजन we have 2, तो we'll take 2. जैसे यहाँ 4 लिए थे वैसे 2 ले लेंगे. and we have sulfur atom also, तो सल्फर का कितना लेंगे? we'll take 32, है ना? सल्फर. and for oxygen we'll take what? we'll take 16. yes, 16 point something units is its atomic mass. तो ऐसे करके we calculate the mass for H2SO4 and we will get it as 98 units. देखो मैं करके बताती हूँ. Let me do it for you. What are we doing? We are calculating the molecular mass. कुछ नहीं करना है. summarize करके बोले अगर तो what are we simply doing is जो atomic masses calculate करते हैं वो उनको हमें सिर्फ प्लस कर देना है. yes, see here H2SO4 की बात हो रही है.
है ना. नाउ H2SO4 के लिए हम सबसे पहले हाइड्रोजन का देख लें. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा, 2 है, तो 2 इंटू दी एटॉमिक मास कितना होता है, 1 ले लें, 1.008 है, 1 ले लेते हैं, 1 यूनिट. सिमिलरली तो ये कितना मिलेगा हमें, वील सी 1 यूनिट. ओके, ये कितना मिलेगा, वील सी. नाउ सल्फर के लिए, सल्फर कितना है, 1 ही है, इनटू इट्स एटॉमिक मास इज 32 यूनिट्स. लेट्स सी कितना मिलेगा. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाउ मेनी डू वी हैव, वी हैव 4 इनटू व्हाट इज द एटॉमिक मास यूनिट, 16 यूनिट्स. यस, चलो अब देखते हैं. यहाँ पर 2 इंटू 1 विल गिव अस 2 यूनिट्स, 32 यूनिट्स वील गेट हियर, and here we'll get 64, 16 fours are 64 unit students. Yes, now let us just add them. यही करते हैं ना, add कर देते हैं. तो 4 plus 2 6, 6 plus 2 8. Yes, and 6 and 3 9. Did we get it as 98 units? H2SO4 का molecular mass क्या हो गया बेटा, H2SO4 का molecular mass कितना हो गया, we get it as 98 units. Clear to all of you? समराइज करने के लिए क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपली जितने भी एटम्स प्रेजेंट है ना बेटा, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, एंड यहाँ O4 के लिए हाउ मेनी डू वी हैव, 4, राइट. उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड मल्टीप्लाई किससे करते हैं, देयर एटॉमिक मासेस. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस बेटा, क्लियर, आई होप इट इज क्लियर. चलो एक बार देख लो, एंड देन वील मूव ऑन टू कैलकुलेटिंग फॉर्मूला मास. आई होप इट इज क्लियर नाउ. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ व्हाट वील सी इज द फॉर्मूला मास. देखो फॉर्मूला मास हम किन स्पीशीज के केस में कैलकुलेट करते हैं, किन स्पीशीज के केसेस में कैलकुलेट करते हैं, वी कैलकुलेट देम इन द केस ऑफ आयोनिक स्पीशीज. ओके, आयोनिक स्पीशीज. देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना. सी व्हाट इज रिटन, सम सब्सटेंसेस डू नॉट कंटेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स, है ना. डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं कुछ सब्सटेंसेस में. डिस्क्रीट मतलब सिंगल एंटिटी ऑफ मॉलिक्यूल. जैसे अगर वाटर की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, वाटर की बात हो रही है, तो ये H2O एज अ होल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना वाटर में. H2O एज अ होल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वाटर में. यस बेटा, लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसे होते हैं जिनमें ऐसे सेपरेट डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स बोलते हैं इनको. डिस्क्रीट मतलब कि सेपरेट एंटिटी, सेपरेट एंटिटी, एंटिटी. ओके, है ना बेटा, एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड डजंट रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, है ना. आयोनिक कंपाउंड्स क्या है, वी हैव, मान लो NaCl, KCl. यस, these are ionic compounds because they have ions N plus Cl minus K plus Cl minus, isn't it? These are what? These are the ionic compounds. See, in case of ionic compounds, formula of the compound doesn't represent one molecule of a compound. ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि सी जब भी हम NaCl का स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा, NaCl, 1 NaCl is surrounded by 6 chloride ions, 1 NaCl plus, and 1 chloride ion is again surrounded by 6 Na plus ions, है ना. तो ये सिर्फ एक स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो अरेंजमेंट है जिससे हम कुछ फॉर्मूला पता लगा सकते हैं, ये वो है ना. इसको हम ये नहीं बोल सकते कि ये पूरा एक कंपाउंड है. नो, ये पूरा एक कंपाउंड नहीं है. दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन कि हम अपना जो सब्सटेंस है जिसे स्टडी कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करें. ओके, सी हियर, इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, अब समझो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड डजंट रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड. दिस इज नॉट, हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज अ मॉलिक्यूल.
We cannot say that this is a molecule. No, ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि when we go and study the structure of NaCl, we see कि सोडियम और क्लोराइड इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं. सिंगल सोडियम इज associated with 6 chloride ions, or we can say surrounded with 6 chloride ions, and similarly single chloride ion is surrounded by 6 sodium ions. When we go deeper in the structure, जब solid state पढ़ेंगे, in that you will come to know the structure, the crystal structure. Okay, उसमें हमें पता लगता है. तो अब एज अ होल हम ये तो नहीं ले सकते, इसकी स्टडी कैसे करेंगे, इसीलिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में वी यूज फॉर्मूला फॉर आयनिक कंपाउंड्स. ओके, चलो आगे देखते हैं. इन आयोनिक कंपाउंड्स पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस एंड वाइस वर्सा. जैसा बताया, पॉजिटिव क्या है, Na है, सराउंडेड बाय नेगेटिवली नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस. कौन से, क्लोराइड आयंस, 6 क्लोराइड आयंस, एंड वाइस वर्सा. सिमिलर इज द केस फॉर क्लोराइड आयन. यस बेटा. नाउ फॉर एग्जांपल इन सोडियम क्लोराइड, each sodium ion is surrounded by 6 chloride ions and vice versa. Yes, clear? Thus, no true molecule exists. क्या बोला है? No true molecule exists. Yes, and formula represents just the simple ratio of positive and negative ions. ये formula क्या है? This is not representing a molecule. It is not representing a molecule. It is just a representation कि हम अपनी studies को simple कैसे बनाएं, कैसे पढ़ा जाए structure, है ना? तो it is just a representation formula, है ना? Now, therefore, here it is more appropriate to use the term formula mass instead of molecular mass. See, molecular mass हम term use नहीं कर सकते because that particular format जो हमने लिखा है वो molecule represent कर ही नहीं रहा है ना? What is it representing? It is representing the formula. इसीलिए कहना ऐसा सही है. molecular mass अगर हम बोलेंगे वो कहना गलत है. हम इसके लिए किस term का use करते हैं? We use the formula mass rather than the molecular mass. Okay, now what is formula mass? Thus, formula mass is the sum of atomic masses of various atoms represented by the formula of an ionic compound. What is it simply? क्या है इसमें? ये atoms हैं, various atoms is sodium atom, chlorine atom, sodium atom and chlorine atom. Yes students, so what is here that is written is formula mass is the sum of atomic masses of various atoms. कौन कौन से? जो भी atoms present है हमारे formula में. Okay, now for example formula mass of NaCl is okay. यहाँ पर calculation किया है. अब आगे देखते हैं कि हम formula mass कैसे calculate करेंगे. concept समझ में आ गया. अब हम calculations में जाएंगे कि फॉर्मूला मास कैसे कैलकुलेट करते हैं. चलो लेट्स सी बेटा. ओके, सो लेट अस कैलकुलेट फॉर NaCl फर्स्ट. अगर हम कैलकुलेशन पर जाएं, कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मूला मास, ओके बेटा. चलो सबसे पहले हम देखते हैं Na एंड Cl का फॉर्मूला मास. क्या करेंगे? इनका एटॉमिक मास ले लेंगे. व्हाट इज द एटॉमिक मास फॉर सोडियम? कितना होगा? 23, isn't it? What will be for chlorine? क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास ही लेंगे जो पीरियोडिक टेबल में मेंशन्ड है. ओके, 35 या 37 नहीं लेंगे बेटा. कैलकुलेशंस के लिए हमेशा वी कंसिडर द एवरेज एटॉमिक मासेस. ओके, अब इसको जब हम ऐड करेंगे what we'll get, see let's add 35.5 and 23. What do we get? Okay, we get 58.5 यूनिट्स कह लो या ग्राम्स कह लो. ठीक है, क्लियर.
This is how we calculate the formula mass of species. Clear to all of you? And this is done basically in the case of ionic compounds. Clear? चलो आगे बढ़े. I hope formula mass is clear to all of you. Easy है, कुछ नहीं करना है, बस atomic masses को calculate कर देना है. अगर यहाँ पर कोई stoichiometry present है, मान लो MgCl2 है, MgCl2 है, stoichiometry या number of atoms कितने present हैं? 2 into 35.5 हो जाएगा बेटा. ठीक है, क्या किया है, अगर 2 atoms present हैं तो 2 से multiply कर देंगे हम, जैसे हमने पहले किया था, इससे पहले molecular mass के केस में किया था. नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई कर रहे थे, ऑक्सीजन के 4 थे तो 4 मल्टीप्लाई किया था 16 से, सल्फर का 1 था तो 1 into 32, लाइक दैट, ऐसे करेंगे. ठीक है, एंड देन वील गेट व्हाटएवर इज आवर फॉर्मूला मास. क्लियर? ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलो आगे देखते हैं. ओके ओके ओके, सो नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट topic, that is the mole concept. Yes students? Okay, so I hope I just guess that this topic is new to all of you, right? तो चलो देखते हैं इसमें क्या है, बहुत ध्यान से समझेंगे, एक एक चीज समझेंगे. Let us study, let us begin with the mole concept students. Okay, चलो. See, let us do a quite briefing. क्या है? Atoms react to form molecules, okay, in simple whole number ratios. ठीक है. However, it is possible to work with individual atoms because they are so tiny. However, it is not possible होगा बेटा. It is not possible. Okay? इसको correction कर लेना. Atoms react to form molecules in simple whole number ratios. However, it is not possible to work with individual atoms क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, है ना? Now, for a chemist, unit for counting atoms, molecules, ions, electrons is mole. What is mole? Mole एक यूनिट होता है. देखो स्टार्टिंग में जब हम SI यूनिट्स पढ़ रहे थे, है ना, जब हम SI यूनिट्स पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कह लो या स्पीशीज कह लो, इसके लिए जो SI यूनिट या जो क्वांटिटी हम लेते हैं, व्हाट इज दैट? इट इज मोल. इजंट इट? इजंट इट स्टूडेंट्स? क्या ये नहीं था? इट वाज राइट. जैसे हमने क्या देखा था, मास मेजर करने के लिए SI यूनिट क्या ले रहे हैं या क्वांटिटी क्या ले रहे हैं? किलोग्राम्स. यस, सिमिलरली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करने के लिए जो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है, इट इज मोल. एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केमिस्ट्री में किसी भी अमाउंट को मेजर करने के लिए इफ वी हैव सम स्टैंडर्ड यूनिट, इट इज मोल. हालांकि इसको हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, है ना. मोल का कन्वर्जन देखेंगे ग्राम्स में कितना होता है, ग्राम्स का कन्वर्जन देखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितना होता है, नंबर ऑफ एटम्स में, एवरीथिंग, एवरी कन्वर्जन वी विल स्टडी. ओके, चलो. सो यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक क्लियर है कि मोल क्या है? टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. देखो यूनिट फॉर काउंटिंग, काउंट कर रहे हैं या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या काउंट कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, उसका अमाउंट देख रहे हैं कि कितना प्रेजेंट है, किसका? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स. इनको शॉर्ट में या फिर इनको कलेक्टिवली बोलने के लिए मैं टर्म यूज करूंगी स्पीशीज. ठीक है, मेक दिस वेरी श्योर, बिठा लो दिमाग में. इन सारे टर्म्स को कलेक्टिवली यूज करने के लिए मैं एक टर्म बोलूंगी, दैट इज स्पीशीज. ओके, चलो. तो यहां तक आई गेस क्लियर है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को स्टैंडर्ड यूनिट में जब मेजर करते हैं तो हम उसे मोल्स में मेजर करते हैं. ओके, सी हियर. ओके, ये देखो, इन SI सिस्टम, mole, what is the symbol? MOL, mole. Okay, mole was introduced as the 7th base quantity. देखा था जब हम base quantities पढ़ रहे थे फर्स्ट पार्ट में, we saw many base quantities, right? SI standards देखे थे. तो यहाँ पर
mole is the 7th base quantity for amount of substance. For amount of substance, students. Clear? Yes? Now, the amount of substance. What is this symbol? N. Number of moles अगर हम निकालते हैं, number of moles, तो हमेशा ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे number of moles. इसको शॉर्ट में कैसे डिफाइन करेंगे? n से. नंबर ऑफ मोल्स, n फॉर नंबर, स्मॉल n, ठीक है. जैसे AMU को हमने शॉर्ट कर दिया ना, कौन लिखे AMU? तो U सिंपली U कर दिया, isn't it short form? Similarly, number of moles के लिए what do we use? N. So that is what is written here कि amount of substance symbol N, right? Symbol क्या लेंगे? N to represent number of moles of a system is a measure of number of specified elementary entities. Elementary entities मतलब वही species, ठीक है. इसके लिए confuse मत होना. An elementary entity may be, देखो बोला मैंने, confuse नहीं होना बिल्कुल. An elementary entity का मतलब है species. Elementary entity, छोटी से छोटी चीज. May be an atom, atom हो सकता है, molecule हो सकता है, ion हो सकता है, electron हो सकता है, या any other particle or specified group of particles. वही बोला ना मैंने कि अगर बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसको कलेक्टिवली हम कैसे बोल देते हैं. जैसे बहुत सारे लोग हैं, men और women हैं, isn't it? बहुत सारे हैं, तो men women बोलने से अच्छा है क्या बोल दें? people, है ना. सिमिलरली यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स. एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब बोलने से अच्छा है सिंपली बोल दो स्पीशीज, ठीक है. लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम बोल किस चीज़ के लिए रहे हैं. ओके बेटा, चलो आगे हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स में जब सॉल्व करेंगे एंड जब आप प्रैक्टिस करोगे तो यू ऑल्सो विल गेट यूज टू इट. अभी नया है, आराम आराम से समझते हैं, इतना बिल्कुल हाफिज़त करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. बिल्कुल कंफ्यूजन रखने की ज़रूरत नहीं है. सिंपल, कीप इट सिंपल, ओके, कीप इट सिंपल. चलो, आई होप इतना क्लियर है. एक बार देख लो एंड देन वील मूव ऑन. ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर. अब आगे बढ़े. सी, चलो लेट्स सी what is written. A mole is amount of substance that contains as many particles. अब यहाँ बोल दिया particles या आप कह लो species, एक ही बात है, जो comfortable लगे वो बोलो बेटा, है ना. A mole is the amount of substance that contains as many species as there are atoms exactly in 12 gram of carbon. कुछ नहीं, सिंपल डेफिनेशन है. समझ आ रही है? ठीक है. नहीं आ रही है? कोई बात नहीं. यहाँ पर स्टैंडर्ड ले लिया है अगेन कार्बन 12 को हमने, है ना, कुछ नहीं किया है. चलो, द नंबर ऑफ एटम्स फाउंड इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड हेंस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ मोल इज फाउंड टू बी 6.023 into 10 to the power 23. What is this number? This number is known as the Avogadro's number. What is it known as? It is known as Avogadro's number. I'll write here 1 mole. Okay, चलो पहले Avogadro number देख लो. AVOGADRO, Avogadro's number. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? NA से. N बड़ा एंड सबस्क्रिप्ट में मतलब नीचे A. This is the symbolic representation for Avogadro's number. All of you register कर लो इतना. And what is the number? NA की क्या वैल्यू है? It is 6.023 into 10 to the power 23. आगे कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं है. यहाँ पर हम अपने हिसाब से अपनी
अपने क्वेश्चन के हिसाब से वील पुट एटम्स हो गए एटम्स, मॉलिक्यूल्स हो गए मॉलिक्यूल्स, आयंस हो गए आयंस. ओके चलो क्लियर, यहाँ तक क्लियर है. एक और बार देख लेते हैं. मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी स्पीशीज as there are atoms in exactly 12 gram of carbon, or number of atoms found in 12 gram of carbon, and hence the number of particles in a mole is found to be इतना एवोगैड्रो नंबर के इक्वल. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि इतने पार्टिकल्स मिलते हैं 1 मोल में. पार्टिकल्स मिलते हैं, स्पीशीज मिलते हैं, या कह लो 1 मोल में इतने मिलते हैं बेटा एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स मिलते हैं. देखो पार्टिकल्स या स्पीशीज की जगह क्या यूज कर रही हूँ मैं, एटम्स मिलते हैं या मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, हाँ बेटा, या आयंस मिलते हैं या इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं. ठीक है, अब समझ आया. देखो 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स मिलते हैं या एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं या एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयंस मिलते हैं या इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू दी एवोगैड्रो नंबर. एक फॉर्मेट याद करवाऊंगी मैं आपको, है ना, मोल कॉन्सेप्ट के लिए एक फॉर्मेट याद करवाऊंगी, वो हमें न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्पफुल होगा. ठीक है, चलो आई होप इतना क्लियर है. आगे बढ़े. ये वैल्यू याद रख लेना, दिस वैल्यू इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस. बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मतलब क्या बताऊँ कितनी इंपॉर्टेंट है. ओके, दिस इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, दिस वैल्यू एवोगैड्रो नंबर. learn it to the core as much as you can, okay, and do not forget it. न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है, राइट. चलो आई होप इतना क्लियर है. आगे देखेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखेंगे अब, है ना. वील चेक आउट ऑन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज. न्यूमेरिकल्स जब करने जाएंगे, न्यूमेरिकल्स पॉसिबली आज करवाऊंगी मैं या फिर नेक्स्ट क्लास में तो करेंगे ही, है ना. तो उसके लिए लेट्स चेक आउट द फॉर्मूलाज. क्या है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज? वी हैव मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट. देखो सिंपली एक चीज ध्यान रखो, एक स्टेटमेंट लिखवा रही हूं, उसको लिख लेना सब लोग, है ना. See here students, एक स्टेटमेंट लिखवा रही हूं, 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फॉर्मूला मास ठीक है, जो भी क्वेश्चन में गिवन है. एंड दिस इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ स्पीशीज. एवोगैड्रो नंबर ऑफ स्पीशीज. स्पीशीज मतलब एटम्स है तो एटम्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स. मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स, और अगर फॉर्मूला है तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ फॉर्मूला, FORMULA फॉर्मूला यूनिट्स. ठीक है, राइट इट एनीवेयर पॉसिबल. इसमें हमें एक एडिशन और करना है, दैट इज द वॉल्यूम टर्म. वो मैं आपको आगे बता दूंगी, या चाहो तो यही लिख लो कि ऑल ऑफ दिस, मतलब ऐसे स्ट्रेट फॉर्मेट में लिखना, इसके आगे इक्वल टू लगाकर. ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहां लिख रही हूं, इट इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स ऑफ गैस. ठीक है, एट NTP लिखना हो लिख लो, नहीं लिखना हो मत लिखो, अंडरस्टूड है वो. चलो इसको सब लोग हाईलाइट करके लिखेंगे, मार्क या मेक as many stars as you want.
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या है? 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा? जो भी हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे स्पीशीज का या अपने एटम्स का या कंपाउंड्स का, इन ग्राम्स। ग्राम यूज हुआ है वर्ड, यहाँ पर यूनिट्स का कोई खेल नहीं है, ठीक है। सिमिलरली ग्राम फॉर्मूला मास वील सी एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जो भी गिवन है क्वेश्चन में, अगर जैसे बोला है कि 1 मोल एटम में से 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने, वी कैन से 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का ग्राम एटॉमिक मास क्या है ना, ऐसे। या 1 मोल CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, या 2 मोल्स NaCl का ग्राम फॉर्मूला मास क्या है, लाइक दैट, है ना। तो जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग वील यूज दिस। सो ये सब किसके इक्वल होता है? ये इंटरकन्वर्टेबल होती हैं। 1 मोल इज इक्वल टू Na number of species, 1 mole is equal to this beta, 1 mole is equal to 22.4 liters of gas. Similarly ये सब इंटरकन्वर्टेबल है। ग्राम एटॉमिक मास इसके इक्वल होगा, ठीक है। इक्वल टू का मतलब क्या होता है? जो इक्वल टू हमने यूज किया है कि ये हम इंटरकन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो अगर मैं बोल रही हूँ ग्राम एटॉमिक मास, इसको मैं इससे भी इक्वेट कर सकती हूँ। ग्राम एटॉमिक मास को मैं इससे भी इक्वेट कर सकती हूँ, इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स ऑफ गैस। तो ये जो है पूरा, इसको बना लो अच्छे से कहीं पर एंड लर्न इट, ठीक है। ये जो इंटरकन्वर्जन है, ये इक्वेट होने का मतलब होता है कि इतना इसके इक्वल है, इतना इसके इक्वल है, इतना ही इसके इक्वल है। दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, लाइक दैट, ठीक है। तो ये जो इंटरकन्वर्जन है ये न्यूमेरिकल्स में बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इट विल बी ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। तो जस्ट मेक इट, लर्न इट, रजिस्टर इट इन योर माइंड, बिठा लो दिमाग में। ओके स्टूडेंट्स, चलो आई होप क्लियर है ये सबको। देख लो एक बार। ओके, कमिंग बैक स्टूडेंट्स, चलो लेट्स सी आगे क्या देखना है। ओके, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हम देख रहे थे, देखते हैं। देखो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, देख लिया हमने पीछे। मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है तो यहाँ ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेंगे, एटम्स पूछा है तो एटॉमिक मास लेंगे। अंडरस्टूड है, राइट। एंड 1 मोल ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स अगर पूछा है तो ग्राम फॉर्मूला मास लेंगे इंटरकन्वर्जन के लिए। ओके, यस, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखते हैं आगे क्या है। वी कैन देयरफॉर से दैट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स में इतने एटम्स होते हैं। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम्स होंगे बेटा? 6.022 into 10 to the power 23. This is equal to the Avogadro number. अगर मैं इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखूं या सिंपल फॉर्म में, तो 1 मोल हाइड्रोजन has how many atoms? 1 mole hydrogen has how many atoms? बोलो, Avogadro number of atoms. Avogadro number of atoms, ठीक है। This particular value is the Avogadro number. Clear to us? देखो अब 1 mole of water, 1 mole of water molecule, 1 mole of any species will have Avogadro number of species. देखो 1 mole of any species will have Avogadro number of species. Avogadro number of species.
या Na स्पीशीज लिख लो, एवोगैड्रो नंबर ऑफ स्पीशीज। देखो क्यों, 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, है ना, 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज में क्या ले लिया, एनी स्पीशीज में क्या ले लिया, हाइड्रोजन एटम्स। इट विल हैव इक्वल टू हाउ मेनी एटम्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि एटम्स की बात हो रही है। सिमिलरली 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स बोला है तो इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने, एवोगैड्रो नंबर। सिमिलरली 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड में कितने होंगे, इतने होंगे बेटा, इतने फॉर्मूला यूनिट्स होंगे, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर सिंपल रिप्रेजेंटेशन क्या है, यहाँ इतने सेक्शन में क्या किया है, 1 मोल को इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास बताया है, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताया है, या ग्राम फॉर्मूला मास बताया है, ग्राम फॉर्मूला मास, है ना, इतने सेक्शन में। और यहाँ क्या बताया है, यहाँ पर बताया है 1 मोल को इक्वल टू हाउ मच बेटा, इक्वल टू बताया है एवोगैड्रो नंबर। अब देखो 1 मोल इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास बताया है, यहाँ पर इक्वल टू Na बताया है। जो हमने अभी फॉर्मूला देखा था, बड़ा सा बनाया था, उसमें क्या नहीं देखा था हमने कि 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फॉर्मूला मास विच इज फर्दर इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ स्पीशीज which is further equal to 22.4 liters। नहीं देखा था, यही देखा था ना, तो बस उसी का रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप इतना क्लियर है सबको। आगे देखते हैं। ओके, व्हाट इज गिवन हियर? अच्छा, अब देखो वही चीज जो मैंने आपको बताई थी, 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फॉर्मूला मास, yes, which is equal to Na particles या species बोलो, मैंने बोला अपनी सहूलियत के हिसाब से, मैंने बोला था species में टर्म यूज करूंगी, कलेक्टिव, है ना, तो पार्टिकल्स भी बोल सकते हो आप। एंड दिस इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स, लीटर्स इज वॉल्यूम। ये जो रिलेशन है ये वॉल्यूम के टर्म्स में है, ये मोल के टर्म्स में था, ये ग्राम्स के टर्म्स में था, ये मास के टर्म्स में था, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में था, ये वॉल्यूम के टर्म्स में है। लीटर किसका यूनिट है, वॉल्यूम टर्म्स में है, वॉल्यूम टर्म्स। यस यस स्टूडेंट्स, नाउ 1 मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन ग्राम स्पीशीज मास। 1 मोल होता क्या है? अच्छा मैम, आप इतने देर से 1 मोल कर तो रहे हो, लेकिन होता क्या है ये एग्जैक्टली? देखो, हियर वी हैव 1 मोल इज इक्वल टू जो भी हमारा गिवन मास है अपॉन द ग्राम स्पीशीज मास। ग्राम स्पीशीज मास मतलब ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फॉर्मूला मास, मतलब हम 1 मोल कैलकुलेट करते कैसे हैं, ये बात बोली जा रही है। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, ये चीज बोली जा रही है। आई होप इट इज क्लियर। देख लो, नाउ व्हाट इज रिटन हियर, नोट टर्म्स लाइक ग्राम एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड फॉर मोल। अच्छा, अगर बोला जाए ना, अगर ऐसा कुछ बोला जाए कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या ग्राम मॉलिक्यूल्स दैट आर यूज्ड या दैट आर देयर इन दिस पर्टिकुलर स्पीशीज या दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, तो कंफ्यूज मत होना, है ना। ग्राम एटम्स और ग्राम मॉलिक्यूल्स मोल के ही नाम है। किसके नाम है? मोल के ही नाम है। ओके स्टूडेंट्स, ग्राम एटम्स या फिर हम कह रहे हैं ग्राम मॉलिक्यूल्स, ये किसके नाम है? ये किसके नाम है बेटा? ये मोल्स के ही नाम है। ओके, मोल्स के, जैसे हमारे घर के नाम कुछ अलग अलग होते हैं ना, राइट? स्कूल में नाम कुछ और होता है, घर में नाम कुछ और होता है, कोई कुछ और बुलाता है, फ्रेंड्स कुछ और बुलाते हैं, इजंट इट? तो सिमिलरली मोल्स के ही ये डिफरेंट नेम्स हैं, ग्राम एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स। अगर क्वेश्चन में ऐसा हो कि ग्राम एटम्स कैलकुलेट करना है या ग्राम मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है, इसका मतलब वो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए ही बोल रहे हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो, ओके, सो आई होप इतना क्लियर है सबको। नाउ आगे लेट्स सी, देखो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम करेंगे एंड पॉसिबली लेट्स सी आज सेम लेक्चर में करते हैं या फिर
नेक्स्ट लेक्चर में तो फॉर श्योर करेंगे, अभी इतना देख लेते हैं. सी हियर, मास ऑफ 1 mole of a substance in grams is called as molar mass. अच्छा, molar mass क्या होता है? It is the mass of 1 mole of a substance in grams. एक मोल ऑफ सब्सटेंस का जो भी मास है इन ग्राम्स, दैट इज मोलार मास. देखो, मोल का मास ग्राम्स में, मोलार मास, मोल का मास मोलार मास, है ना. मोल का मास विल बी मोलार मास, लेकिन इन ग्राम्स बेटा, है ना. नाउ द मोलार मास इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इन यूनिट्स. इन यूनिट्स मतलब यहाँ पर अब ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है, ज़्यादा झमेला है नहीं. जो भी मोलार मास आएगा ग्राम्स में, दैट विल बी इक्वल टू 1 इन यूनिट्स, है ना. इसको हम या तो यूनिट्स में कह लो या ग्राम्स में कह लो, बात एक ही रहेगी. ओके, कोई कंफ्यूजन वाली लाइन नहीं है. चलो, मोलार मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम्स पर मोल. मोलार मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू इतना. ये कैलकुलेट किया कैसे है, कैसे कैलकुलेट किया है, चलो देखते हैं. लेट्स सी. See here students, हमें पता है 1 mole is equal to gram molecular mass या gram atomic mass, है ना. अब अगर हम बोले मोलार मास ऑफ वाटर निकालना है, वाटर का मोलार मास निकालना है, कैसे निकालेंगे इसका मास, कैसे निकालेंगे? 2 इंटू, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, 2 इंटू इसका मास कितना होता है 1 प्लस how many oxygen atoms 1 into how many oxygen का मास कितना है 16. तो ये कितना हो जाएगा 2 into 1 2 plus 16 into 1 16. how much we are getting 18 grams, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ये एक मॉलिक्यूल है ना वाटर का, इसीलिए हमने ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिया है. तो 1 मोल, क्या इससे इन्फ्रेंस निकाला बेटा? 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर ऑफ H2O, है ना, हैज मोलार मास ऑफ 18 ग्राम्स. ओके, कितना है? ऑफ 18 ग्राम्स. क्लियर? कुछ नहीं करना है, सिंपली मास ही तो निकालना है. जैसे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया था, देखो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया था, mm का मतलब क्या है, शॉर्ट में लिखा है मैंने, इसका क्या एक्सपेंशन है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, राइट. तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट करना देखा था, एंड सिंपली यूनिट की वजह से वी आर एडिंग ग्राम टू इट, कि हम कहीं किलोग्राम में ना मान लें या किसी और मिलीग्राम में ना मान लें, है ना, स्टैंडर्ड यूनिट है. ठीक है, चलो. सिमिलरली सोडियम क्लोराइड का भी हमने देखा था 58.8 NaCl. सोडियम का कितना होगा जल्दी बताओ? 23. क्लोरीन का कितना होगा? 35.5. दोनों को ऐड कर देंगे तो व्हाट विल वी गेट? 58.5 ग्राम्स पर मोल. ओके, yes, unit gram per mole है for mass. Clear to all of you? Students, I hope आपको इतना समझ आया होगा. Next we have the numericals जो solve करने हैं, तो that we will be doing in our next class. I hope यहाँ तक सबको clear है. Do revise it. और जो फॉर्मूले की पट्टी बनवाई थी, 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फॉर्मूला मास यूनिट्स इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर विच इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स, उसको लर्न करके आना. इफ यू आर कमिंग फॉर द नेक्स्ट क्लास, आना ही है. ओके, वी आर जस्ट डूइंग आवर चैप्टर इन पार्ट्स, ताकि आपको समझ आए क्लियर, एक दिन के लिए बहुत ज़्यादा ना हो. सो अकॉर्डिंगली डिवाइड किया है, एंड न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. बट फॉर दैट आपको टाइम है अभी, अंटिल वी गो फॉर द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर. डू लर्न इट एंड कम. ओके, यू विल सी कि मोल कॉन्सेप्ट के जो न्यूमेरिकल्स हैं दे विल बी वेरी इजी, है ना. चलो, ओके, That's all for today's lecture. We'll continue with the same topic in our next lecture. For further updates, do like, share and subscribe to our YouTube channel.